پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہری دور میں دو ایسے نام بھی تھے جنہوں نے اپنی شائستگی، علم، وقار اور غیر معمولی فن کے ذریعے نہ صرف ڈراموں کو یادگار بنایا بلکہ اداکاری کے معیار کو بھی ایک نئی پہچان دی۔ ان کے مکالموں میں ٹھہراؤ تھا، شخصیت میں وقار اور اداکاری میں ایسی سچائی تھی کہ ہر کردار حقیقت محسوس ہونے لگتا تھا۔ وہ تھے رضوان واسطی اور طاہرہ واسطی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جھروکا ٹی وی، جہاں ہم کرتے ہیں پرانی یادوں کا سفر۔ پی ٹی وی کی پالیسی کیا ہوگی؟ ہر ڈرامہ محنت کش پر ہونا چاہیے، ہر گھر میں روٹی اور کپڑا آنا چاہیے، غریب لوگوں کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے دکھائیے۔ تعلیم؟ بس ایک بات یاد رکھیں، بغیر محنت کش کے کوئی پروگرام آن ایئر نہیں جائے۔ یہ صرف ایک کامیاب میاں بیوی نہیں تھے بلکہ فن اور تہذیب کی ایسی جوڑی تھے جس نے پی ٹی وی کے سنہری دور کو اپنی موجودگی سے مزید روشن بنا دیا۔ آج جب پرانے ڈراموں کی بات ہوتی ہے، جب کلاسیکی کرداروں کا ذکر آتا ہے، جب شائستہ اداکاری کی مثال دی جاتی ہے، تو رضوان واسطی اور طاہرہ واسطی کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ آئیے آج جھروکا ٹی وی میں ہم واپس چلتے ہیں اس دور میں جب ایک ہی چینل پورے ملک کو جوڑتا تھا، جب ڈرامے صرف تفریح نہیں بلکہ تہذیب کا حصہ ہوتے تھے، اور جب اداکار شہرت سے زیادہ اپنے فن کی عزت کو اہمیت دیتے تھے۔ میں ریڈیو ڈرامہ کر رہا تھا، کسی نے کہا کہ یور وائس از مور سوٹیبل فار نیوز ریڈنگ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آڈیشن دی، 2-3 دن بعد خط آ گیا کہ آ کے آپ نیوز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اچھا مشورہ تھا جو اس نے آپ کو دیا تھا؟ اچھا، کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں صرف نیوز ہی پڑھا کروں؟ بھائی پی ٹی وی کے سنہرے دور میں حسینہ معین، فاطمہ ثریا بجیہ، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، امجد اسلام امجد اور بے شمار عظیم قلمکاروں نے ایسی کہانیاں لکھیں جنہوں نے کئی نسلوں کی سوچ پر اثر ڈالا، اور ان کہانیوں کو زندگی دینے والے فنکار بھی غیر معمولی تھے۔ انہی فنکاروں میں ایک نام رضوان واسطی کا تھا اور دوسرا طاہرہ واسطی کا۔ یہ دونوں صرف اداکار نہیں تھے، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، وسیع المطالعہ اور نہایت مہذب شخصیات تھے۔ روٹس کے میری ممانی تھی رضوان صاحب کی والدہ، ماموں کے گھر میں شادی ہوتی ہے، تو میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اس پوری زندگی جتنا سال وہ زندہ رہیں، کچھ باتیں ہو سکتا ہے انہیں میری بری لگی ہوں یا مجھے ان کی نہیں اتنی اچھی لگی ہوں، لیکن یہ وہ ہے کہ رضوان صاحب بھی یہ مانتے ہیں کہ آج تک میری ان سے کوئی ٹوٹی نہیں ہے۔ اچھا، شاید یہی وجہ تھی کہ جب بھی کسی ہدایت کار کو کسی باوقار شخصیت، کسی رئیس خاندان، کسی تاریخی کردار، کسی جج، کسی سفارتکار، کسی ملکہ یا کسی نوابزادی کا کردار پیش کرنا ہوتا تو اس کی پہلی پسند اکثر یہی دونوں ہوتے۔ رضوان واسطی کی آواز میں ایک عجیب سا روب بھی تھا اور اپنائیت بھی۔ وہ آہستہ بولتے تھے لیکن ان کے ہر لفظ کا وزن محسوس ہوتا تھا، جبکہ طاہرہ واسطی کی شخصیت میں ایک فطری شاہانہ وقار تھا۔ ان کی گفتگو، ان کی چال، ان کے تاثرات اور خاموشی تک کردار کا حصہ محسوس ہوتی تھی۔ میں نے جو بننا تھا میں بن گیا ہوں۔ غلطی کر رہا ہے بیٹا، آج کے زمانے میں کسی تھانے دار سے کبھی واسطہ پڑ گیا تو بیٹھنے کو کرسی بھی نہیں پوچھے گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا بیٹا تیرا، محلے والوں کا تو کوئی کام نہیں کروا سکے گا۔ ہاں ماں۔ رضوان واسطی سن 1937 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی عمر ہی سے ان کی آواز دوسروں سے مختلف محسوس ہوتی تھی، گہری، مضبوط اور اعتماد سے بھرپور۔ یہی آواز انہیں صرف 16 برس کی عمر میں ریڈیو پاکستان لے آئی۔ رضوان واسطی نے 16 برس تک ریڈیو پاکستان میں انگریزی خبروں کے معروف صداکار کے طور پر خدمات انجام دیں۔
इस दौरान उन्होंने अपनी आवाज, तलफ्फुज, लहजे और अल्फाज पर ऐसी गिरफ्त हासिल की जो बाद में उनकी अदाकारी का सबसे बड़ा सरमाया साबित हुई। खबरें पढ़ना एक डेड चीज होती है, सामने कुछ भी नहीं होता। आपको कैसे पता चला कि जी आप में एक्सप्रेशन भी हैं, आप एक्टिंग भी कर सकते हैं? ये किसने डिस्कवर किया आपका ये टैलेंट? मुझे असल में न्यूज़ के लिए तो मैंने ऑडिशन नहीं दी थी। मैं रेडियो ड्रामा कर रहा था, किसी ने कहा कि योर वॉइस इज मोर सूटेबल फॉर न्यूज़ रीडिंग, तो मैंने कहा कि ठीक है। ऑडिशन दी, 2-3 दिन बाद खत आ गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फन की दुनिया उनका वाहिद मैदान नहीं था। उन्होंने कराची के सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से कानून की तालीम हासिल की और बाद अज़ां बैंकारी के शोबे से वाबस्ता हो गए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में वो मुसलसल तरक्की करते हुए वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंचे। ये एक हैरानकुन हकीकत है कि दिन भर बैंक की जिम्मेदारियां निभाने वाला यही शख्स शाम को कैमरे के सामने आकर ऐसे किरदार तख्लीक करता था जो आज भी नाजरीन के दिलों में जिंदा हैं। हमको क्या मालूम कहाँ रहेंगे? अम्मा, आपको एतराज ना हो तो मैं नासिर अब्बास के यहाँ ठहर जाऊँ? मुनासिब यही है बेटे, एनेक्सी में तो कमर रहने लगे हैं। नहीं नहीं, अनेक्सी की बात नहीं है। दरअसल नासिर अब्बास के यहाँ ताजियतदारों का सिलसिला लगा हुआ है। शमा तो आप ही के पास रहेगी। अच्छा अम्मा, हाँ। चलिए किशोर भाभी। दूसरी जानिब ताहिरा वास्ती की कहानी भी इतनी ही मुनफरिद थी। सन 1944 में सरगोधा में पैदा होने वाली ताहिरा बुखारी बाद में ताहिरा वास्ती के नाम से मशहूर हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अदाकारी से पहले लिखना शुरू कर दिया था। सिर्फ 16 बरस की उम्र में उनके मज़ामीन मुल्क के मारूफ रसाइल में शाया होने लगे थे। इनका पीटीवी से पहला ताल्लुक बतौर अंग्रेजी न्यूज़ प्रेजेंटर कायम हुआ। कैमरे के सामने उनका एतमाद, शानदार तलफ्फुज और बावकार शख्सियत जल्द ही हिदायतकारों की तवज्जो का मरकज बन गई। और फिर वो लम्हा आया जब उन्होंने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। मैं इन तस्वीरों के सामने से सिर्फ गुजरी और मैं समझती हूँ कि इनमें से हर तस्वीर हमसे ये तकाजा करती है कि उसे निहायत तवज्जो और गौर से देखा जाए और समझा और परखा जाए। 70 की दहाई शुरू हुई तो पीटीवी भी अपने उरूज की तरफ बढ़ने लगा। ये वो दौर था जब ऐसे ड्रामे तख्लीक हो रहे थे जिन्हें आज भी पाकिस्तानी टेलीविजन का सरमाया कहा जाता है। और इन्हीं शाहकारों में एक नाम था खुदा की बस्ती। रिजवान वास्ती ने भी इस यादगार ड्रामे में अपनी मजबूत मौजूदगी से साबित कर दिया कि वो सिर्फ खुश लिबास और बावकार किरदारों तक महदूद नहीं, बल्कि हर किस्म के संजीदा किरदार में जान डालने की सलाहियत रखते हैं। फिर वो ड्रामा आया जिसे आज भी क्लासिकी पीटीवी ड्रामों में नुमाया मकाम हासिल है, शमा। फातिमा सुरैया बजिया के खूबसूरत कलम से तख्लीक होने वाली ये कहानी सिर्फ एक खानदान की दास्तान नहीं थी, बल्कि मशरकी मुआशरत, रिश्तों की नज़ाकत और जज्बात की खूबसूरत तर्जुमानी थी। इस ड्रामे में रिजवान वास्ती और ताहिरा वास्ती एक साथ नजर आए और दोनों ने अपनी शानदार अदाकारी से कहानी को एक नई जान बख्श दी। अम्मा को समझाना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा भाई साहब। खुर्शीद भाभी परसों रवाना हो रही है। मैं, शमा और ताहिर उन्हीं के साथ आ जाएंगे। इसके बाद ताहिरा वास्ती ने एक ऐसा किरदार अदा किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए नाजरीन के दिलों में महफूज कर दिया। ये ड्रामा था अफशां। 1981 में नशर होने वाला ये शाहकार उस जमाने के मकबूल तरीन ड्रामों में शुमार होता है। ताहिरा वास्ती ने नजमुस सहर के किरदार में जिस वकार, एतमाद और नफासत का मुजाहरा किया वो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने इस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि उसे जिंदा कर दिया। आज भी जब अफशां का जिक्र होता है तो नजमुस सहर का किरदार जहन में जरूर उभरता है। इतनी तूफानी रात में आप बच्चे के साथ? मैं अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने के लिए आज आपके दरवाजे तक चली आई हूँ। क्या किया? अली, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की परवरिश आप करें, वरना पापा इसे यरूशलेम ले जाएंगे और गुसारिया के गिरोह से खत्म कर देंगे। खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा ली। नो नजमुस साहब, नो।
लेकिन अगर किसी एक किरदार ने ताहिरा वास्ती की फनकाराना सलाहियतों को हमेशा के लिए अमर कर दिया तो वो था तारीखी ड्रामा शाहीन। ताहिरा वास्ती ने मलिका इजाबेला के किरदार में जिस वक़ार और एतमाद का मुजाहरा किया वो हैरान कुन था। उनकी चाल में शाहाना अंदाज था, निगाहों में एतमाद था और मकालमों में ऐसी मजबूती कि नाज़िर चंद लम्हों बाद ये भूल जाता कि वो एक अदाकारा को देख रहा है। यूं महसूस होता था जैसे तारीख खुद उसके सामने जिंदा हो गई हो। इसी किरदार ने उन्हें तारीखी किरदारों की पहली पसंद बना दिया। हम आज दरबार में अबू दाऊद को नहीं देखते, हमारे ख्याल में उससे मशवरा जरूर कीजिए। मुकद्दस बात, सालगिरह की रस्में शुरू की जाए। बाद में जब नसीम हिजाजी के शोहरा आफाक नॉवल पर मबनी ड्रामा आखिरी चट्टान पेश किया गया तो ताहिरा वास्ती ने एक मर्तबा फिर साबित किया कि तारीखी किरदार उनकी शख्सियत का फितरी हिस्सा मालूम होते हैं। मंगोल सल्तनत की मलिका के किरदार में उन्होंने ताकत, वक़ार और जज्बात का ऐसा हसीन इम्तजाज पेश किया कि ये किरदार भी उनके यादगार किरदारों में शामिल हो गया। हमारे ख्याल में काफी गुफ्तगू हो चुकी। बगदाद के सफीर को रवानगी की तैयारी भी करनी है, इन्हें सुबह रवाना होना है। अच्छा, अब रुखसत। हम बहरहाल बगदाद के दोस्त हैं। अगर आपको ये नक्शा पसंद हो तो इसे अपने पास रख सकते हैं। वैसे हमारे पास और भी नक्शे मौजूद हैं। अरूसा और उसके बाद कशकोल जैसे मकबूल ड्रामों में भी उन्होंने अपनी पुख्ता अदाकारी से ये साबित किया कि असल फनकार वक्त के साथ पुराना नहीं होता बल्कि उसकी कद्र और बढ़ जाती है। सलमा, तुम क्या कह रहे? तुमने कहा था ना जुबैर के फहद को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना। पता है, मैं उसे बहाने से डॉक्टर हुसैन के पास ले गई। गुड। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा कि इस उम्र में बच्चे को माँ से ज्यादा बाप की शफकत और सरपरस्ती की जरूरत है। यस, ऑन द लाइन। ओ पहलवान, हाँ क्या हुआ? मगर वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। 24 जनवरी 2011 पाकिस्तानी फ़नून लतीफ़ा के लिए एक अफसुर्दा दिन साबित हुआ। तवील अलालत के बाद रिजवान वास्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। रिजवान वास्ती की जुदाई के सिर्फ एक बरस बाद 11 मार्च 2012 को ताहिरा वास्ती भी अपने खालिक हकीकी से जा मिलीं। यूं एक साल के मुख्तसर अरसे में पीटीवी अपने 2 दरख्शां सितारों से महरूम हो गया। अगर आज कोई सवाल करे कि रिजवान वास्ती और ताहिरा वास्ती की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी, तो शायद जवाब किसी एक ड्रामे का नाम नहीं होगा। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने अदाकारी को वक़ार अता किया। शायद यही वजह है कि आज भी जब पीटीवी के सुनहरे दौर की बात होती है तो रिजवान वास्ती और ताहिरा वास्ती का नाम एहतराम, मोहब्बत और अकीदत के साथ लिया जाता है। अगर आपने भी रिजवान वास्ती और ताहिरा वास्ती के ड्रामे देखे हैं तो अपनी यादें हमें ज़रूर बताएं। आपकी राय और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपकी यादें शायद इस खूबसूरत दौर की एक और खिड़की खोल दें। और अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरे दौर के ये लाजवाल फनकार, यादगार ड्रामे और उनसे जुड़ी खूबसूरत दास्तानें नई नस्ल तक पहुंचती रहें, तो झरोका टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे माजी की एक और रोशन याद के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।